Hello everyone, welcome to Career IS Institute. I am Ravikant Yadav, Faculty of Political Science at Career IS. Today we will be discussing UPSC 2021 preliminary question paper, which was held on 10th October 2021. Question paper will be visible at your screen. There were 18 questions in the question paper. So let me share the question paper to all of you. I hope this paper is visible to you. The very first question, see, I have arranged all the questions from the paper. These are not in the sequential order, but I tried my level best to make it in a sequential order. So, the very first question is, we adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? Let's just discuss two statements which were given by the UPSC. The very first statement says, as regards legislation, British Parliament is supreme or sovereign. Now, this first statement seems to be correct because in Britain, the parliament is supreme. Judiciary cannot challenge the act of the parliament, but the very next statement here says that in India, the thing is contrary. In India, the power of the parliament to legislate is limited. Now, if you see this statement, there is a doctrine which says that parliament is limited, and the doctrine is doctrine of basic structure. ये doctrine of basic structure कहती है कि जो parliament का power है legislation का, वो limited है. They cannot amend some basic structure, basic features of the constitution. In Keswanand Bharti judgment, the Supreme Court held that the power of parliament is limited in order to make legislate an act. The next statement here is, in India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि यहाँ एक जनरल लेजिस्लेशन को चैलेंज करने की बात नहीं कह रहा ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने की बात कर रहा है, और किसकी? किसी एक्ट के अमेंडमेंट की. क्या ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये जानना चाहता है. तो जैसा हमने पहला वाला स्टेटमेंट देखा था, वहां पर ये कह रहा है कि पावर जो है पार्लियामेंट की वो लिमिटेड है, बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज आस्किंग अबाउट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है या नहीं है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कंपेयर करें, जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, हम डेराइव करते हैं, ये पावर बोरो करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू का पावर लिखा हुआ है, दिया हुआ है, वो ये कहता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसमें सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लेजिस्लेशन को की वैलिडिटी को चेक कर सकता है. पर यहाँ पे लेजिस्लेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ अमेंडमेंट की बात हो रही है. इन दैट सिनेरियो, इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रेटर पावर एज कंपेयर टू यूएस सुप्रीम कोर्ट. यस, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है बिकॉज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो उसे हमने चैलेंज करा था केशवानंद भारती जजमेंट में, जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आया था. ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा. तो पहला वाला स्टेटमेंट जो बात करता है कि पावर लिमिटेड है लेजिस्लेशन की पार्लियामेंट के, वो बिल्कुल सही है, और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाता है. तो हमारा ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2 is correct. Both 1 and 2 is correct. The second question is, with reference to the union government, consider the following statement. अब ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, और यहाँ ये कहता है कि with reference to the union government क्या सही होगा. यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कहता है, एन गोपालस्वामी अयंगर कमिटी सजेस्टेड दैट a minister and a secretary be
designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. अगर हम पहला फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात करें तो उसने ये चीज सजेस्ट करी थी, ना कि इस कमेटी ने, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज बिल्कुल ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो करेक्ट, अगर यहाँ पे ऑप्शन ऐसा लिखा होता कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ने ये सजेस्ट करा है, कमीशन ने सजेस्ट करा है, तो ये सही हो जाता। Second statement is, in 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission 1966 and this was placed under the Prime Minister's charge. अगर हम इसको रिव्यू करें तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बट यहाँ ये जो स्टेटमेंट कह रहा है दिस वॉज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे होना चाहिए कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उसे कहाँ पे प्लेस किया गया था? अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी। तो बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन था यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है राइट टू प्राइवेसी से लेके, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू प्राइवेसी, जैसा हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 2017 इन द जजमेंट ऑफ पुट्टास्वामी ये हेल्ड किया था कि राइट टू प्राइवेसी डेराइव करता है अपनी अथॉरिटी आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को इंटरप्रेट करके राइट टू प्राइवेसी का राइट यहाँ पे एज अ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इट्स नथिंग बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 में 3 स्टेटमेंट्स हैं और ये जानना चाहता है आपसे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट। The very first statement says that in India there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. तो ये कह रहा है कि 3 constituencies से 3 constituencies से इलेक्शन लड़ना है और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैंडिडेट्स पे। ऐसा कोई लॉ नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करता है। बट एज वी ऑल नो दैट देयर इज अ लॉ, and what is that law is a representation of People's Act 1951. Under section 33 clause 7 it says that वहाँ पे लिखा है not more than 2, तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स के बारे में लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट में। बट अंडर दैट लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 दैट सेज दो लोगों के बारे में। बट जैसे ही हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है 3 लोग, जिस पे हम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, एक्ट कहता है 2 लोगों का, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे 3 से उन्होंने किया था, वो कैसे कर लिया? फिर आप कहोगे कि सर आप 2 बता रहे हो और यहाँ तो 3 लिखा हुआ है दूसरे स्टेटमेंट में। देखिए ये सही स्टेटमेंट है 1991 वाला, दिस वन इज करेक्ट बिकॉज हाँ उन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से करा था, बिल्कुल सही है। जो पहला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ एक्ट के बारे में, सेक्शन 33 का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे थ्रू एन अमेंडमेंट जो कि 1996 में किया गया था, पहले 3 था वहाँ पर, उसको चेंज करके 2 कर दिया गया इन 1996। तो अगर इसको लेटेस्ट डेवलपमेंट पे अगर उस पैरामीटर पे जज करें तो ये स्टेटमेंट गलत है। बट बिफोर प्रायर टू 1996 द पोजीशन वाज राइट, द पोजीशन वाज करेक्ट। यस, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे कर सकते थे, जैसा कि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट में कर रहे हैं। नाउ द लास्ट वन इज एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ ए कैंडिडेट कंटेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिज हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ by elections to the constituencies vacated by him her in the event of him her winning in all the constituencies। तो ये जानना चाहता है कि अगर कोई भी मेंबर, कोई भी कैंडिडेट अगर 1 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जीत जाता है तो उसका जो कॉस्ट है, अगर वो एक कहीं का सीट छोड़ता है, उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा? तो ये कह रहा है कि उसका कॉस्ट बियर करेंगे उसके पार्टी के लोग। बट ऐसा नहीं है। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे उनमें ये कहा गया कि ये ऐसा नहीं होगा और उनके जेब से ये पैसा नहीं जाएगा। तो ये दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ओके,
तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ओनली 2। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India। देखिए यहाँ पे एक कैच है, आपको ऑप्शन नहीं देखना है, पहले आपको क्वेश्चन समझना है। ये कहता है कि एक ऐसा लेजिस्लेशन जो कन्फर करता है किसी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर। लेट्स सपोज किसी एक के पास, किसी अथॉरिटी के पास, पार्लियामेंट के पास, सपोज अगर किसी पार्लियामेंट के पास या ब्यूरोक्रेट के पास अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर आ जाए तो वहां क्या सिचुएशन अराइज हो जाएगा? जब आप इस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हो, ऐसा किसी को पावर दे देना किस प्रिंसिपल के अपोज होता है? ये अपोज होता है प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये वॉयलेट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ को। रूल ऑफ लॉ कहता है कि जो कुछ भी आप करिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए और वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। तो आर्बिट्रेरी यहाँ पे अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर अगर हम किसी को दे देंगे तो वो आर्बिट्रेरीनेस को जन्म देगा और जो कि अगेंस्ट है, वॉयलेटिव है प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ के। जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल डाइसी ने दिया था और उसी प्रिंसिपल को हमने इनकॉर्पोरेट करा इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने किस आर्टिकल में पढ़ते हैं? आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं। ओके, तो बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। आर्टिकल 14, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character। यानी अब हमें पता करना है कौन सा इसेंशियल फीचर है जो फेडरल कैरेक्टर को सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेशन हमें देखना है। ओके, तो चार ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड, द फर्स्ट ऑप्शन। द सेकेंड ऑप्शन इज द यूनियन legislature has elected representatives from constituent units, and the third option is the union cabinet can elected representatives regional parties, and the last option is the fundamental rights to enforceable by court of law। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ कहता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में, which is to some extent is correct, but हमें बेस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें। तो फिर ये बात करता है दूसरा, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो ज़रूरी नहीं है आपका फेडरल कैरेक्टर होने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। सी कहता है यूनियन कैबिनेट कैन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रीजनल पार्टीज। ये भी ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी फीचर नहीं है फेडरल कैरेक्टर बताने के लिए। और फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। रीज़न बीइंग कि जब भी क्लैश होता है यूनियन और स्टेट के बीच में तो जुडिशरी पिक्चर में आती है और जुडिशरी कई सारे डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स का अप्लाई करके डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है, लाइक पिटन सबस्टांस, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कल्डरेबल लेजिस्लेशन। ये सारे डॉक्ट्रिन्स हैं जिनका एप्लीकेशन करती है। इसके लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। So our answer would be option A. Moving on, the next question is which one of the following best defines the term state? As you all know that there is a convention, Montevideo Convention, which says that a state has 4 elements. Before going on the options, it's better to discuss all those 4 elements. What are all those elements? The very first element according to Montevideo Convention is a state includes 4 elements. The very first is territory. Every state would be having a definite territory. And the second is there would be a government, organized government. Next one is there would be a population, community of people. Yes, and the last one is sovereign. So all these 4 elements has to be there in the definition of state. Now we will move towards the options. The very first option says
a community of persons permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government. तो अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे हमें कम्युनिटी ऑफ पर्सन भी मिल जाएगा और परमानेंट नेचर में उनका ऑक्यूपेंसी भी है एक डेफिनेट टेरिटरी को लेके, और बिना ही किसी एक्सटर्नल कंट्रोल या पोजीशन के एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट भी मिल जाएगी हमें। तो इस डेफिनेशन में हमें चारों एलिमेंट मिल रहे हैं स्टेट के। तो अभी तक एट लार्जर स्केल ये ऑप्शन सही लग रहा है, हमें बाकी 3 ऑप्शन भी देख लेने चाहिए। A politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ नेचुरल राइट्स के सेफगार्ड की बात हो, उनके प्रोटेक्शन की बात हो। तो हमारा बी ऑप्शन उतना लेजिट नहीं लग रहा एज कम्पेयर टू ऑप्शन 1। ऑप्शन सी कहता है ए नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन ए डेफिनेट टेरिटरी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फिर से हमें ये ऑप्शन भी उतना सुटेबल नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कल्चर देखने का, ट्रेडिशन देखने का, हमें वो 4 एलिमेंट मिलने चाहिए। वो 4 एलिमेंट हमें पहले मिल चुके हैं। डी कहता है ए सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन ए डेफिनेट टेरिटरी विद ए सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी, अब सेंट्रल अथॉरिटी डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो स्टेट की डेफिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी दैट जुडिशरी वुड बी कमिटेड जुडिशरी। Okay, so the very first statement is true. The first option is true. So moving on to the next question, question number 8. With reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. Now, if we look at this statement is expressly mentioned under Indian Constitution, under Article 128. Yes, Article 128 exactly यही बात कहता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है with the permission of prior permission of President, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो की तरह वो एक्ट कर सकता है। ठीक है, सिट एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट कर सकता है, परमिशन लेनी पड़ेगी उसको प्रेसिडेंट से। तो एज यू कैन चेक दिस स्टेटमेंट टू फ्रॉम आर्टिकल 128। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। अब यहाँ पर हाई कोर्ट की जो पावर है रिव्यू को, उसको इक्वेट कर रहा है, इक्विवेलेंट बता रहा है सुप्रीम कोर्ट के पावर से। क्या ये सही है? आर्टिकल 226 बात करता है कि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 129 है जो बात करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की। और जो कोर्ट के पास पावर होती है, जिस भी कोर्ट के पास ये पावर होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, उसके पास ये भी पावर होता है कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ही पावर है टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन सिटीजनशिप से है। तो पहला ऑप्शन कहता है देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। बिल्कुल सही बात कहता है। हम डुअल सिटीजनशिप के बारे में बात नहीं करते, इंडिया डुअल सिटीजनशिप को प्रमोट नहीं करता। हमारे यहाँ सिर्फ एक सिटीजनशिप है, वन डोमिसाइल। एग्जैक्टली वन डोमिसाइल है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में बोला है कि इवन दो आप डोमिसाइल किसी स्टेट का बनवाते हो, बट वो पूरे इंडिया का एक डोमिसाइल होगा, वो पूरे एक नेशन का डोमिसाइल माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आप डोमिसाइल्ड हो, इंडियन डोमिसाइल्ड हो। ठीक है। Second statement, a citizen by birth only can become the head of state. Now see, this statement, अगर इस statement को हम relate करें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, वहाँ पर अगर यूएस के प्रोविजन से हम डिस्कस करें कि वहाँ सिटीजनशिप और हेड ऑफ स्टेट की क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो ये स्टेटमेंट यूएस के लिए तो जस्टिफिएबल है, बट इंडिया के लिए जस्टिफिएबल नहीं है।
यूएस में ऐसा प्रोविजन है कि सिर्फ वहां पे बर्थ लिया हुआ पर्सन ही हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, बट इन इंडिया ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे अगर उन्होंने एक्वायर करी है, एक्विजिशन भी हुआ है अगर, तो भी वो हेड ऑफ स्टेट बन सकते हैं। थर्ड वन इज ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ऐसी बात नहीं है। अगर आप सिटीजनशिप एक्ट पढ़ोगे 1955 का, तो वहां पे सेक्शन 10 आई गेस 10 9 10 टॉक्स अबाउट 8 9 10 टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन, हाउ वन कैन रिलिंक्विश, या फिर ऐसे कह लें कि आप फोरफीट कैसे कर दोगे अपने सिटीजनशिप राइट को, आपसे सिटीजनशिप कैसे छीनी जा सकती है, वहां लिखा हुआ है। तो आपसे छीनी भी जा सकती है। लेट्स सपोज आपने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, तो आप यहाँ से फोरफीट कर जाओगे। अगर आपने कोई फ्रॉड कर दिया, कुछ गलत चीज़ें कर दी जो वहाँ पे मेंशन्ड है उस एक्ट में, तो आपसे सिटीजनशिप ले ली जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट कहता है कि टोटल ब्लैंकेट बार कर दिया यहाँ पे कि नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है ऑप्शन देखते टाइम, जैसे हम देखते हैं कमिटेड जुडिशरी, बहुत सारे लोग कमिटेड जुडिशरी पे ऑप्शन टेक कर देते हैं। सी कमिटेड जुडिशरी क्या होती है? एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी रिजीम, इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत सारे जजमेंट जुडिशरी ने रिवर्ट कर दिए। इवन एट द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू बहुत सारे जजमेंट्स को उन्होंने रिवर्ट कर दिया। जुडिशरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट, कमिटेड जुडिशरी नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है, बिकॉज जुडिशरी कमिटेड नहीं हो सकती, किसी पार्टी से कमिटेड नहीं हो सकती, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। द वेरी सेकेंड ऑप्शन इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जरूरी नहीं है, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। आप स्टेट को भी पावर दीजिए, सेंटर को भी पावर दीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन आई सी ऑफ हैविंग पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज। अगेन इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट होने का कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। एंड नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, यस, सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ से आता है? ये एक फिलोसोफर हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में और उन्होंने एक और किताब लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, वहाँ से ये डॉक्ट्रिन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और ये ऑप्शन ज़्यादा सही है एज कम्पेयर टू अदर 3 ऑप्शंस। तो लिबरल डेमोक्रेसी के लिए सेफगार्ड, बेस्ट सेफगार्ड लिबर्टी है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 भी इसके बारे में बात करता है, हालांकि वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में बात करता है, उनके बीच सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑप्शन 11। ऑप्शन 11 इज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। ये मिस स्पेलिंग है यहाँ पर, ठीक है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये गलत है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। अब अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या वायलेट करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म खोजें तो ये हमें आर्टिकल 39 में मिलेगा, 39 के सी में मिलेगा। 39C बात करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। अगर 39C की बात करें तो 39C को प्रमोट करता है 31C, जो कि 25th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, जिसको चैलेंज किया गया केशवानंद भारती जजमेंट में, जो लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है। और लैंड रिफॉर्म हुआ ही इसीलिए था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन टू सम एक्सटेंट इज करेक्ट, बिल्कुल, बिकॉज आर्टिकल 39 is a part of DPSP, Directive Principle of State Policy। 31C जो बात करता है कि जो भी पार्लियामेंट लॉज बनाएगी,
39B और C को नज़र में रखते हुए वो अपहोल्ड होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बात करता है राइट टू फ्रीडम की और डी बात करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट की। तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज ये एक्सप्रेशली मेंशन्ड है आर्टिकल 39C में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12 बात करता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा आसान है, बट इसमें गलतियां काफ़ी हो जाती हैं। जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हो, राइट टू प्रॉपर्टी, आपके दिमाग में आता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। आर्टिकल 31 बात करता था प्रायर टू 1978, 44th अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया और इसे 300 कैपिटल ए में ऐड कर दिया गया। है तो अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में, बट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। अगर हम ऑप्शंस पे नज़र डालें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ हर जगह लीगल राइट या तो फंडामेंटल राइट हमें नजर आता है ऑप्शन में। आर्टिकल 300 कैपिटल ए बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी के प्रोविजंस वहाँ लिखे हैं, पहले ये फंडामेंटल राइट में हुआ करता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है या ये सभी के लिए अवेलेबल है। तो इसका बहुत ही कॉमन सेंस वाला एक्सप्लेनेशन है कि आप फॉरेनर्स को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौका देते हो इंडियन की टेरिटरी पर, और उन्हें आप प्रॉपर्टी एक्वायर करने का भी अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री, अपना आउटलेट ओपन करने के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये सिर्फ सिटीजन्स तक अवेलेबल है, सीमित है, रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन कहता है लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, तो ऐसा नहीं है, सिटीजन्स ओनली तो नहीं है। अब लीगल राइट की बात कर लेते हैं, बिकॉज लीगल राइट हर एक ऑप्शन में आया हुआ है। ये लीगल राइट है या नहीं है। जब इसको स्क्रैप किया गया 44th अमेंडमेंट में, तो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था जो गवर्नमेंट ने उस टाइम टेबल करा था, उसमें इन्होंने लिखा कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। एंड अगेन, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन अवेलेबल है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और लीगल राइट भी है। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा होता तो ये दोनों ऑप्शन होता, अदरवाइज यहाँ सिर्फ फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है। तो ये फंडामेंटल राइट तो अब नहीं रहा, बिकॉज 44th अमेंडमेंट से इसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। तो लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, एग्जैक्टली ये किसी के लिए भी अवेलेबल है। सी वाला ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज फंडामेंटल राइट नहीं है ये, और डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये लीगल राइट के लिए भी मना कर रहा है। तो लीगल राइट तो है ही, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन आना था यहाँ पे बिकॉज अभी रिसेंटली गवर्नमेंट से एक गलती हुई। गवर्नमेंट ने जब डॉक्यूमेंट कोई लीगल डॉक्यूमेंट था उसको प्रोड्यूस किया, उसमें ये पुराना जो स्टैंड था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था इंडिया का, उसको लिख दिया यहाँ पर। 42nd अमेंडमेंट में जो प्रोविजंस ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में, उसको यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले क्या चीज़ें थी। तो ये क्वेश्चन प्रीएम्बल से है। प्रीएम्बल में आप देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट से दो वर्ड जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़े गए थे? सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दो वर्ड जोड़े गए थे। अब सोशलिस्ट और सेक्युलर स्टार्टिंग में नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया गया था, जब ये अडॉप्ट किया गया था या जब फोर्स में आया था, तब ये प्रोविजंस नहीं थे। इनको 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया था। तो क्या था? सबसे पहले यहाँ पे था सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये दो वर्ड नहीं होंगे, तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सोवरेन नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज ये 3 वर्ड थे उस वक्त, अब 5 वर्ड हैं, ये 2 वर्ड इनमें ऐड कर दिए गए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या चीज होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है जहां पर गवर्नमेंट लिमिटेड हो, गवर्नमेंट का एक लिमिटेड स्कोप हो, एक्सट्रीम पावर नहीं होगी, डिक्टेटरशिप नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगी, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है, उसके सीमित होके वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन।
बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो लिमिटेड होती है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। तो देखते हैं ऑप्शन। ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर, जरूरत नहीं है हमें, जरूरी नहीं कि फेडरल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, यूनिटरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर्स, ऐसा भी जरूरत नहीं है हमें, नॉमिनल पावर्स बिल्कुल नहीं। ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, ये भी जरूरी नहीं है हमारे पास। लास्ट ऑप्शन इज अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस वन इज करेक्ट, तो 14 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट वन इज judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail। अगर हम जुडिशियल कस्टडी की डेफिनेशन को देखें तो जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी मतलब होता है कि कस्टडी, अ पर्सन इज इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कस्टडी में होगा, और कोर्ट की कस्टडी में होने का मतलब कि वो जेल में होगा, ठीक है। तो कहता है जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मैजिस्ट्रेट, बिल्कुल मजिस्ट्रेट कोर्ट को ही कहते हैं, कोर्ट या मजिस्ट्रेट दोनों एक ही चीज होती है, कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज इज लॉक्ड अप। अब लॉक्ड अप में नहीं होगा वो जेल में होगा। अगर वो लॉकअप में है तो उसको पुलिस कस्टडी बोलते हैं। तो अ पर्सन इज इन लॉकअप मींस ही इज इन पुलिस कस्टडी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है, बिकॉज वो जेल में होना चाहिए, यहाँ पे नॉट इन जेल लिखा हुआ है, यहाँ जेल होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ ये कह रहा है कि जुडिशियल कस्टडी में अगर कोई अक्यूज है तो उस वक्त पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं होती है कि बिना परमिशन के, बिना अप्रूवल के कोर्ट के वो उसे इंटरोगेट कर सके। बिल्कुल यही पर्पस भी है जुडिशियल कस्टडी में किसी अक्यूज को रखने का, कि वहां पर एवरी नाउ एंड देन उसे हैरास न किया जाए पुलिस ऑफिसर के द्वारा, क्वेश्चंस एंड आंसर करके, इंटरोगेट करके। उनके लिए प्रायर अप्रूवल जरूरी है कोर्ट का। तो एग्जैक्टली दोनों ऑप्शन में ऑप्शन 2 इज करेक्ट, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। Now next question, question number 16. With reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his her right. अब यहाँ ये कह रहा है कि पैरोल एज अ मैटर ऑफ राइट। अब पैरोल होता क्या है? पैरोल होता है अगर एक प्रिजनर एक डेफिनेट स्टेज तक अपनी सजा काट चुका है तो उस स्टेज पे वो एलिजिबल हो जाता है पैरोल की रिक्वेस्ट करने के लिए। अब पैरोल देना, ग्रांट करना एक डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि इस बेसिस पर दिया जाता है कि उसका गुड बिहेवियर है कि नहीं। ये एक रिफॉर्मेटिव मेथड है, रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट का, जुरिस्प्रूडेंस का ये टॉपिक है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है पैरोल का। और ये कहता है कि अगर एक अक्यूज्ड एक डेफिनेट टाइम के बाद अगर वो ये शो करता है कि उसके बिहेवियर में चेंज आया है और उसने गुड बिहेवियर एक्वायर कर लिया है इन द आईज ऑफ द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज, तो वो अथॉरिटी के पास ये डिस्क्रिशन है कि उसे पैरोल दे सकती है। ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ना कि ये एक मैंडेटरी है। तो ये यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ राइट लिख दिया, जो कि ये गलत कर दिया। एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता है, ये रिक्वेस्ट होता है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। बिल्कुल सही बात है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने रूल्स होते हैं अपने प्रिजनर्स को लेके कि उन्हें पैरोल पे देना है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। Question number 17. At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006? ये क्वेश्चन डिट्टो इस एक्ट पर है और ये एक्ट का सेक्शन 11 बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके,
तो आपको सीधा इस एक्ट को खोलना है और इस एक्ट पे जाके ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सेक्शन 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 18। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। हियर यू कैन सी Bharat Ratna and Padma awards are titles under the Article 18(1) of the Constitution of India। अब ये कह रहा है कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स आर्टिकल 18 के 1 में आते हैं। आर्टिकल 18(1) बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। तो ये क्वेश्चन है आपसे ये जानना चाहता है कि क्या ये दोनों अवार्ड्स कवर होते हैं आर्टिकल 18(1) में। तो इसका आंसर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है इस पर। एक केस है जिसका नाम है द होम सेक्रेटरी प्रिजन वर्सेस एच नीलोफर निशा। इस केस में मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, द होम सेक्रेटरी प्रिजन वर्सेस एच नीलोफर निशा, एच नीलोफर निशा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, सॉरी ये जजमेंट नहीं है, जजमेंट है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये जजमेंट है। 5 जजेस बेंच की पीठ थी जिसने ये कहा कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड जो है इंक्लूडेड नहीं है आर्टिकल 18(1) में। ठीक है। दूसरा है पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। अब ये स्टेटमेंट दिखने में तो सही लग रहा है बट यहाँ लास्ट में गलती कर दी, यहाँ पे लिखा ओनली वंस। ऐसा नहीं है, 2 बार यहाँ पर आप अगर वेबसाइट पे जाओगे पद्मा अवार्ड्स के तो वहाँ पे ये एक्सप्रेशली मेंशन्ड है कि ओनली वंस नहीं है। ये 2 बार इंटरप्शंस हो चुके हैं। पहला इंटरप्शन था फ्रॉम 1978 टू 1979 और दूसरा इंटरप्शन था जहाँ पे सस्पेंशन हो गया था इस अवार्ड का, वो था 1993 टू 1997। तो 2 बार इसको हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। यहाँ मैक्सिमम 5 की बात कर रहा है पर ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 3 कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 आप जब आप भारत रत्न अवार्ड के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे 3 लिखा होगा। तो ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए में तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, डी होगा। 1 2 3 ऑल आर नॉट करेक्ट। ये नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो नॉट करेक्ट में तीनों ही ऑप्शन गलत है। तो ये 18 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। ये 18 क्वेश्चंस, ये जो एक क्वेश्चन था यहाँ पर पैरोल से क्वेश्चन था यहाँ पर जी, यहाँ पर पैरोल एक सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है इस पर। पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू, कि एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं होता, ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है। ये केस था होम सेक्रेटरी वर्सेस नीलोफर निशा का, होम सेक्रेटरी वर्सेस नीलोफर निशा का केस था जहाँ पे ये हेल्ड हुआ था कि एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं दिया जाता। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।